In today's headlines, the economic survey projects India's GDP growth, Sonia Gandhi's poor thing remark on President sparks controversy, and Akhilesh Yadav accuses the government of hiding the Mahakumbh stampede death toll. Hi, I'm Flora Swai and welcome to today's news wrap, where we bring you the top stories of the day. Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Economic Survey 2024-25 forecasting India's GDP growth between 6.3 to 6.8% for the next fiscal year. The survey highlighted India's economic resilience despite global uncertainties and emphasized key sectors driving growth. The projections set the stage for the budget 2025, where further economic measures will be outlined. Growth outlook for FY26. We projected 6.5 to 7% for FY25, and this time we are projecting a growth outlook between 6.3 and 6.8% for FY26, which is in line with the projections made by many international organizations as well. The economic survey tabled by Finance Minister Nirmala Sitharaman on Friday projected India's gross domestic product (GDP) to grow between 6.3% and 6.8% in the next fiscal year. The GDP is essentially the monetary measure of all the goods and services produced within India's borders in a year. According to the survey authored by Chief Economic Advisor V. Anantha Nageshwarana and his team of officials, it said, quote-unquote, "The fundamentals of the domestic economy remain robust with a strong external account, calibrated fiscal consolidation, and stable private consumption. On balance of these considerations, we expect that the growth in financial year 2026 would be between 6.3 and 6.8%. Meanwhile, India's GDP is projected to grow at a four-year low pace of 6.4% in the current fiscal on weak manufacturing and investments. This is lower than the growth projected in last year's economic survey of 6.5 to 7% and the Reserve Bank of India's 6.6% estimate. The survey document read, quote-unquote, "As per the first advance estimates of national accounts, India's real GDP is estimated to grow by 6.4% in financial year 25. Growth in the first half of financial year 25 was supported by agriculture and services, with rural demand improving on the back of record kharif production and favorable agricultural conditions." It added, quote-unquote, "The manufacturing sector faced pressures due to weak global demand and domestic seasonal conditions. Private consumption remained stable, reflecting steady domestic demand. Fiscal discipline and strong external balance supported by a services trade surplus and healthy remittance growth contributed to macroeconomic stability. Together, these factors provided a solid foundation for sustained growth amid external uncertainties." That's all for today, but stay tuned to the Indian Express for continuous coverage of Budget 2024-25, and don't forget to tune in to our channel for the complete coverage of Budget on February 1st. Thank you so much for watching. In other news, Congress leader Sonia Gandhi's comment referring to President Draupadi Murmu as a poor thing has triggered a political storm. The BJP has condemned the remark as an insult to the president, with BJP MP Sukant Mazumdar calling it disrespectful. The statement was made while backing Rahul Gandhi's observations on the president's lengthy speech. The Congress is yet to issue an official clarification on the same. Usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again she and could again. hardly speak for thing. आदिवासी समाज की बेटी जो भारत का नंबर 1 सिटीजन बना, उनके भाषण को लेकर इस तरीके का बात करना, ये मुझे लगता है कांग्रेस जैसे पार्टी से एक्सपेक्टेड नहीं है. One poor thing in Indian politics, that is Rahul Gandhi. The first day of Budget Day kicked off with President Draupadi Murmu's address in the parliament, which went on for an hour. However, it was Congress veteran leader Sonia Gandhi's remarks on Murmu that stoked controversy. Sonia called Draupadi Murmu a poor thing, highlighting how she got tired by the end of her speech. Usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak for thing.
other Congress leaders to criticize her remarks. I think the Honorable President of India and I live in two different countries. The Honorable President's view of the country she governs over and the country I live in seem to have stark differences and stark, completely 180 degrees apart. While the President seems to celebrate success, which I don't deny is also there, but the President is conveniently glossed over the harsh realities of daily life in India. BJP leaders condemned the remarks and called Rahul Gandhi a poor thing. देखिए, जो कांग्रेस चल रहा है, कभी कांग्रेस को पूरी देश नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से ही नेशनलिस्ट पार्टी के तरफ पे उन्हें तर्जे पर उन्हें जाना जाता था। लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने अपना दायित्व लिया है, तब से उन्हें जो सलाह देने वाले लोग हैं, सारे जेएनयू से एक्सट्रीम लेफ्ट वाले लोग हैं। और इसी के कारण जिस तरीके की कांग्रेस की जो नीति आई है, यानी कांग्रेस के जो भाषण आ रहे हैं और उनके जो स्पीचेस आ रहे हैं, सारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी पद है उनको अपमान करने वाला। और एक आदिवासी समाज की बेटी जो भारत का नंबर 1 सिटीजन बना, उनके भाषण को लेकर इस तरीके का बात करना, ये मुझे लगता है कांग्रेस जैसे पार्टी से एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब ऐसी चल रही है, क्या कर सकते हैं। इसलिए जनता बार बार कांग्रेस को सीख दे रही है। आगे आने वाले इलेक्शन में भी कांग्रेस को जनता नसीहत देगी और सीख देगी। माननीय सोनिया गांधी जी, जो कि पूर्व अध्यक्षा हैं कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता है, जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है, वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी। एंड व्हाट अ पुअर थिंग, उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती है। भारतवर्ष एक गणतंत्र है, विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र की जो प्रथम नागरिक है वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है। और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक पुअर थिंग कोट अनकोट बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है। उन्होंने अनेक पदों को धारण किया है और तत्पश्चात वो आज देश की महामहिम राष्ट्रपति है। और न वो थकी है और न वो झुकी है। उन्होंने बुलंदी के साथ इस देश में विगत 10 वर्षों से अधिक का जो कालखंड रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के काल में देश आगे बढ़ा है, उन सब विषयों को बड़े सक्षमता के साथ और बड़े सूक्ष्मता के साथ हर विषय को स्थापित किया और रखा है। मुझे लगता है महामहिम राष्ट्रपति के लिए सोनिया गांधी जैसे बड़ी नेता इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करिए बिल्कुल अनुचित है। एंड इन फैक्ट इफ देयर इज वन पुअर थिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स, दैट इज राहुल गांधी। राहुल गांधी ही वो पुअर थिंग है जिनको बार बार लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है, बट द पुअर थिंग नेवर गेट्स लॉन्च्ड, वो लॉन्च ही नहीं हो पाते हैं। सोनिया जी को अपने इस टिप्पणी के लिए क्षमा याचना महामहिम राष्ट्रपति जी से करनी चाहिए। Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has meanwhile accused the government of concealing the actual number of deaths in the Mahakumbh stampede. He claimed the cover-up aims to avoid compensating victims' families. His remarks come amid mounting criticism of the state government's handling of the incident, with opposing parties demanding transparency and accountability. जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है। और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है, जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे, शव का पूरा इंतजाम करे, उन्हें पहुंचाने से लेकर के उनके घर परिवार को जल्दी से जल्दी जानकारी और सूचना देनी चाहिए। उस पर सरकार जांच बिठा चुकी है। उस पर राजनीति करना, किसी के परिवार की मौत हुई उस पर मौत पे राजनीति करना, इससे दुखद कुछ नहीं। हम जान रहे मिल्कीपुर का चुनाव, हम ये भी जान रहे 2027 के चुनाव की रोटियां सेकना, कुछ और नहीं था। तो ये तो खोज रहे थे कि कब।
ये सत्र और आज का दिन कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके शांति के लिए जरूर बात रखी जाए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री नैतिक रूप से तो जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है, जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे, शव का पूरा इंतजाम करे, उन्हें पहुंचाने से लेकर के उनके घर परिवार को जल्दी से जल्दी जानकारी और सूचना देनी चाहिए। देखिए, मैं देखिए, ये सरकार हर बात छिपा रही है और आप भी सरकार के बहकावे में मत आइए। ये जो वीआईपी वाली बात थी, तो वीआईपी के लिए अलग घाट है, अलग इंतजाम था, अलग प्रोटोकॉल था, लेकिन जो घटना हुई है, आम लोग जहां जाते हैं, आम लोगों के लिए जो व्यवस्था इंतजाम था, जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम 40 करोड़ 45 करोड़ लोगों को स्नान करा देंगे, हमारे कुंभ में आएंगे लोग। सोचिए, अगर 40 करोड़ लोगों की बात कही हो सरकार ने और जाकर के जगह जगह कार्ड बांटे हो, निमंत्रण दिया हो, ये भी उचित नहीं है। निमंत्रण नहीं दिया जाता कुंभ में, लेकिन सरकार ने जब निमंत्रण दिया है तो सरकार की तैयारी क्या थी? सरकार अपनी बात छिपाना चाहती है, सरकार की गलती है। सरकार जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार जाकर के मॉनिटर करते थे, और मैं प्रेस के साथियों से भी कहूंगा, कम से कम कुंभ के मामले में जनता का ध्यान न हटाएं, सरकार की जिम्मेदारी थी। कोई साजिश नहीं है, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो अभी भी लोग फंसे हैं सड़कों पर, उनका इंतजाम करें, डीजल पेट्रोल का इंतजाम करें, उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करें। जब आपने प्रचार इतना किया तो इंतजाम क्या किया? अब तो साधु संत भी कहने लगे आप झूठे हैं। कुछ लोग खुल करके कह रहे हैं, कुछ लोग कह नहीं पा रहे हैं। सोचिए, मुख्यमंत्री को अगर साधु संत कहने लगे झूठे, और इससे ज्यादा नैतिक हार क्या हो सकती है? ये सरकार की जांच है, इस पे हम और विचार करेंगे। पहले सबसे पहली बात यह है कि सरकार सूची जारी करे, जो शव मिले हैं उनकी पूरी चिन्हित करे, कहां जा सकते हैं, पूरे सम्मान के साथ पहुंचाया जाए। और अभी भी छिपा रहे हैं, अभी भी जानकारी पूरी सरकार छिपा रही। अगर सरकार क्यों छिपा रही थी जानकारी? देखिए, ये लोग तो इंतजार कर रहे थे कि ऐसी कुछ भी छोटी भी घटना हो ताकि घेरा जाए मोदी जी को और योगी जी को। ये गलत बात है। अमावस्या दिन था, करोड़ों लोग श्रद्धालु आए हैं, कई सौ सालों के बाद हिंदुत्व जगा है। अब उस प्रेम में 144 साल में तो वही माहौल में एक बहुत दुखद घटना हुई जो हम सब लोगों के लिए बहुत पीड़ाजनक है। उस पर सरकार जांच बिठा चुकी है। उस पर राजनीति करना, किसी के परिवार की मौत हुई उस पर मौत पे राजनीति करना, इससे दुखद कुछ नहीं। हम जान रहे मिल्कीपुर का चुनाव, हम ये भी जान रहे हैं 2027 के चुनाव की रोटियां सेकना, कुछ और नहीं था। तो ये तो खोज रहे थे कि कब हो। तो ये बहुत ही गलत बात है और अच्छी बात नहीं है, और इससे जनता को और श्रद्धालुओं को खास बहुत दुख पहुंचाया जा रहा है, इस पर जो राजनीतिकरण हो रहा है। सर, अब ये कहा गया कि वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो सोचा है, देखिए, वो निर्णय सही है। अगर महाराज जी ने कोई भी निर्णय प्रशासन ने लिया, वो सराहनीय है। वो जनता के लिए और सबकी सुख सुविधाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए लिया। सर, दिल्ली इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी ने सीईसी पे अटैक किया और कहा है कि ये पोस्ट रिटायरमेंट जॉब अभी तक हम अभी तक 40 विधानसभाओं में जा चुके हैं। आपदा वाली पार्टी दिल्ली हार रही है, और ये हार पे ये सारी बातें आ रही हैं। उनको भी पता चल गया है कि बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। उनके झूठ, उनकी बातें, उन पर से विश्वास लोगों का उठ गया। मेन है कि जनता का विश्वास अब उनकी हर बात पर, उनकी कोई बात पर जनता विश्वास, एक परसेप्शन होता है। 10 साल उन्होंने देखा, अब वो हार रहे हैं। जनता अब उन पे कोई भी बातों पर विश्वास नहीं करने वाली है। मोदी जी की सरकार आ रही, मोदी की गारंटी पर विश्वास है। एक एक माँ बहनें, और मेरी सारी सभाओं की आप भीड़ देख लीजिए, वो कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, बुलाई नहीं भीड़ है। ये उनके झूठे वादों से त्रस्त होके ये नर्क की जो जिंदगी दिल्ली की राजधानी जी रही है, अब उससे वो उभरना चाहते।
In other news, the drawbridge of the under construction Pamban rail bridge in Tamil Nadu was partially opened, allowing an Indian Coast Guard vessel to pass through. Shortly after, a trial run of the Rameshwaram Express took place, making the first train movement on the bridge in 2 years. The milestone has been welcomed by locals eager for the bridge's full operation. That's all for today, but we leave you with visuals of the first glimpse of panda cubs in Berlin Zoo.